ਕੰਬਲ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਕੜਿਆ ਰਿਹਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਰਾਤੀ ਵਿਖਾਇਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾਨ ਨੇ ٹھیک ہے مطلب آپ کہہ رہے ہو دونوں میں صرف نام کا فرق ہے ایک ہی ایک ہی ہاں جی اچھا میں تے جڑا وہ کوئی ایشو تے یہ زیادہ اپڈیٹ نہیں رکھی منو تے ایسی کہ ختم ہو گیا معاملہ تے جے اس تے تسا براڈ لائیے تے بالکل جناب تسا چلاؤ سوری تھوڑا میں ٹائم جڑا لیا صحت نہیں لائی لیکن باغبان بھائی اچھا لگا آپ سے بات کر کے کبھی باغبان دوبارہ موقع ملا تو ہم کریں گے گپ شپ کیونکہ باغبان بھائی کے ساتھ ان کے رشتے دار بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا اصل میں باغبان میرے کیڑے رشتہ دار نے نہیں راجا صاحب اچھا راجا صاحب یار راجا صاحب نال کی گل کرنی کیونکہ یہ بار بار دعویٰ کرتے پے نے میرے رشتے دار انہوں نے ایک بار نہیں کیتا دعویٰ یار علی بھائی تھوڑی سی اجازت دے دو یار پہلے والی بات تھوڑی سی 5 منٹس کی چلے مناسب لگے تو ہاں بھگوان بھائی وہ آپ جو ریزیمبلنس لا رہے ہو نا سورہ اعراف کی آیت کے ساتھ یہ ابھی جو ڈسکشن میں یہ بات ہے سلمان والی آئی تھنک سو یہ دو مختلف چیزیں ہیں میں جو کرنا چاہ رہا تھا نا میں سوری میرا پوائنٹ انہوں نے روکا تھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شیاطین کو سلیمان کے لیے مسخر کر دیا ٹھیک ہے نا ہاں جی ابھی جب آدم کے لیے بات آئی تھی تب تو کہہ رہا ہے جا دفع ہو جا تو تیرے راہ میں میرے راہ تب بھی یہ کر سکتا تھا نا کہ ابلیس کو مسخر کر دیتا آدم کے لیے میں یہی تب کیوں نہیں اس نے کیا مسخر میں یہی بولنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ دو مختلف باتیں ہیں ایک جگہ پہ ایسے انسان ہیں جو تھوڑا کوئی اچھا بیہیو نہیں کرتے تھے وہ صحیح نہیں ہے تو ان سے ہیلپ لے لے گی مگر وہاں جو پہلی بات آغاز کی بات ہو رہی ہے میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ یہ جس میں آپ انسان ڈالنا چاہ رہے ہیں نا ابھی تک کہ کسی مفسر مترجم محدث نے ادھر انسان نہیں ڈالے سبھی نے یہی کہا ہے کہ وہ جن ہی تھے بس شیطان ہی یہی تھے بات ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح السلام کو بتایا تھا میرے فرقہ کے لوگ علم و معرفت میں ترقی کریں گے تو ہم طویل اچھی سی کر لیتے ہیں آپ نے کرنی واہ ماشاء اللہ جس طرح حضرت یوسف کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا ایک بہترین سلسلہ سکھایا تھا ہمیں اچھی تعویل کا قرآن کی تعویل کا اچھا سلسلہ سکھایا واہ بہت عمدہ زبردست کہ وہ نہ کر دیو کیونکہ مسیح موعود کو یہ بھی کہا گیا تھا نا کہ وہ سلطان القلم ہے جتھے شیطان کہا جاندہ نا ایک منٹ بھگوان جتھے شیطان کہا جاندہ نا یا جتھے اللہ کہا جاندہ یہ تہاڈیاں صفات دے بارے ڈسکس ہوندا وا کوئی ہور شے نہیں ہوندی میرا فہم منو تے نہ ویچو میں تے انہاں نوں صرف سمجھدا اس چیز نوں نا شیطانی صفات جویں کہا جاندہ نا روحانی صفات کہا جاندہ رحمانی صفات کہا جاندہ نا کوئی میں فزیکل نہیں چیزاں نوں کسی نوں بھی سمجھدا نا انہاں چیزاں بالکل صحیح گل ہے لیکن محمد احمد صاحب نے کہا ہے کہ اسی جڑا نا وہ طویل اچھی کرنے ہیں تو میں کہا اتنی نہ طویل کر چھڑیو کہ مسیح موعود نو جڑا ہے وہ کیا گیا ہے کہ اس زمانے دا سب تے زیادہ قرآن دا علم تنو دتا گیا اے علم ہویا انہاں نے تے اس علم کی وعد کے اگاں طویل نہ کر جیو جڑی نہیں یار 100 سال گزر گئے ہیں زمانہ آگے بڑھ رہا ہے چیزیں بیٹر مزید ہوئیں گی حضرت صاحب کو بھی بڑا اچھا بتایا تھا اللہ نے بہت صحیح تھا پر اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اب اللہ تعالیٰ مزید بیٹر اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو پتہ ہے نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا میرے پاس کمی نہیں ہے نئے سے نئے معرف آئیں گے نئی سے نئی چیزیں آئیں گی تو میں حضرت صاحب کو کوئی غلط یا مخالفت نہیں کر رہا وہ بڑا زبردست بیسٹ اپنا ٹائم تھا ابھی 100 یہ مور دین مطلب 130 ایئرز ہو گئے نئی چیزیں اللہ نے دینی ہے تو ایک احمدی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے تضادات ختم کر کے اس کو ایک لڑی کے اندر ڈالنے کی کوشش کی جائے نا مگر ابھی جو 2 آیتیں زیر بحث میں آئی ہیں اس میں کنٹرڈکشن آ رہی ہے اور جو پہلی والا حصہ ہے جو میں ختم نہیں کر پا رہا تھا ایک تو آزاد راجپوت بھائی نے بھی بات کی وہ جو فرسٹ والا کانٹیکسٹ ہے وہ انسان کی جبلت پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 چیزیں انسان کے ساتھ جوڑ کے بھیجی ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے وہ تو ایسے ہی رہے گی اس کو بولت دی ہوئی ہے کہ اچھا کر لے خباثت جتنی کرنی ہے مگر بحیثیت انسان جس کے ساتھ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ اچھے کام بھی لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہترین طویل بنے گی اس کی کیا خیال ہے صحیح ہو گیا ابھی آپ بات کریں اس کے بعد پھر علی بھائی جو ٹاپک چلانا چاہ رہے ہیں اپنا ان کو تنگ کر رہے ہیں اور ان کے احمد بھائی بھی چلے گئے
तो वो कर लें। हाँ जी हाँ जी, वो अपना कर लें बिल्कुल। जी जी जी, हम फिर इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो गप इंशाल्लाह। लगाएंगे इस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ਕਰ ਲੈ अब अपने ना तबलीग का ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਇੱਥੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਲਾ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਏ ਤੇ 1 2 ਗੱਲ ਕਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। बहुत आला। कौन लिख रहा है, मैं तो नहीं समझ आ रही। ये संघेड़ा साहब संघेड़ा ले कह हैं, रहा हूँ, संघेड़ा संघेड़ा साहब लिख रहे हैं। हाँ जी, अगर तो संघेड़ा साहब कह रहे हैं। संघेड़ा हाँ ये लिखा है साहब, संघेड़ा। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਜ਼ੌਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਆਕੂ ਸਬਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਰਾਜੇ ਨੂੰ 1 to 1 ਕਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਜੁਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 1 to 1 ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਅਖਲਾਕੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਾਜੇ ਮਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਚਮਚੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖੋ ਜਦੋਂ ਯੈਸ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਾਲ 1 to 1 ਗੱਲ ਕਰ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਝੂਠਾ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਉਬ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਚੌਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਣ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਣ ਗਏ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 1 to 1 ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਣਾ ਹੈ ਹਫਤੇ ਖੰਡ ਤਾੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਹਫਤਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹੁਣ। यार छोटे ये वाली बात आपने बड़ी अहम की है। राजा भाई नॉर्मली जब भी कहीं जाते हैं जहाँ पे ख़िताब करते हैं तो जाके भाई की पहले सबसे पहले यही डिमांड होती है, पीछे पीछे हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ, सारे थले ला दो, मतलब एक पूरा खाली एक मजमा बना दो, थिएटर स्टेज मेरे लिए चला दो ना, फिर जाके बात करते हैं, उसके बगैर नहीं करते। तो यहाँ पे आप मौका दे रहे हैं, मगर वो आई डोंट नो कि वो यहाँ पे क्यों नहीं आपसे बात करने आ रहे, यहाँ पर्सनली क्यों नहीं करते, शॉर्ट क्यों नहीं करते। आपने उस दिन तमाशा नहीं देखा था उधर, वो 4 बंदों ने जब उनके मुकम्मल तौर पे मूड लगाए, जरा शोर आ रहा है। ओके ओके। उस दिन जब वो उसकी बरौट पे गए हैं सरकार की, वहाँ बैठ के जब 5 बंदों ने उनकी मुकम्मल टिका के टीसी की, वहाँ पे बैठ के इन्होंने वापसी टीसी का जवाब दिया सबको कि माशाल्लाह बड़े अच्छे मुफक्कर हैं सारे। यहाँ पर जब आए थे तो उन्होंने पहले टर्म एंड कंडीशन तय की थी अहमद जट साहब के साथ कि अब बंदे है फलाना बैठेगा फलाना नहीं बैठेगा। फिर मैं आपकी बरौट पे आता हूँ। ताहिर ठवाल की बरौट पे गए थे तो पहले ताहिर ठवाल को फ़ोन करके कहा था कि सबको मोड़ से हटाओ और सबको नीचे उतारो, फिर मैं ऊपर आता हूँ। ये ताहिर साहब ने लाइव बताया हुआ है सर। इसलिए वो ऐसा बंदा है कि जब उसके इर्द गिर्द उनके चापलूस बैठे होंगे और उनकी टीसी करने वाले, फिर वो बात कर सकते हैं। ठीक है, जब देखेंगे कि अच्छे काम होने लगा वहाँ से कहेंगे मैं चल। हाँ, बाकी लोगों के साथ ये वहाँ सीकर की बरौट पे चलेगा, घंटा बैठे रहे सीकर के पास। ठीक है, सीकर के साथ जाके बात इन्होंने 1 घंटा उसकी बरौट पे बैठ की है। आमिर नज़ीर के साथ कर लेते हैं, हर जगह अफजल वड़ैत के साथ बैठ जाते हैं अपना, क्योंकि हमारा पता है कि हम उनका असली चेहरा माशाल्लाह, जिस तरह मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब लाल मस्जिद वाले के मुंह से उन्होंने बुरका उठा के लोगों को बताया था ना कि ये है मौलाना अब्दुल अजीज़, हमने इसी तरह उनके मुंह से बुरका उठा के लोगों को दिखाना है कि ये है राजा मन्नान। वो इस चीज़ से डरते हैं। ये नहीं पता कि सीसीडी ने अगर उन्होंने फाड़ लिया सी अब्दुल अजीज़ ने, तो सीसीडी ने फाड़ मैंने भी लेना है। परार तो साइज छोटा कर दो यार, जिमें पहले से ना 4 खाने वाला कर दो साइज। कोई सन जरूरत नहीं है कि किसी जी को साडा को बंदा आके साथ दे ना।
ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਖਾਣੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ आप दोनों का जो दुश्मन है ना वो इस चीज़ को इतना कैश करा रहा है, इतना एंजॉय कर रहा है। कल मैं एक ब्रॉड से गुजरा, मुझे भी रिक्वेस्ट आ रहा मैं तो बैठता नहीं उनके साथ, तो वो रब्बा को लेके बैठा और वो अपने वागा वुगा की बातें की, वो बहुत एंजॉय कर रहा है। तो इसको ब्रेक लगा लो किसी जगह पे, कुछ हासिल नहीं हो रहा। और राजा भाई तो कोई बात ही नहीं कर रहा, किसी जगह पे कुछ बोल नहीं रहा, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मिल क्या रहा है, हासिल क्या हो रहा है, मतलब वो कोई नतीजा भी तो पता चले ना। इसलिए समझो, बस कर दो अब। क्या ख्याल है? जी जी बिल्कुल ठीक ख्याल है सर आप वो आप मैंने कहा था ना कि वो आएगा वापस, तो वो देखना कैसी कैसी ऑडियोज आएंगी। और वो कल बैठ के चला रहा था, बल्कि मैं लेट जो मैंने कहा शुरू से सुनाओ क्या है, तो ਅੱਛਾ उन्होंने शुरू ਇਹ से ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਲੰਘਣੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਬਲੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ तो आ गया ना शैतान अपने ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ वो अपने बॉस ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਾ ਕੱਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ boss ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਇਹ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਐਸਾ ਖਬੀਸੁਲ ਸਿਫਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥ ਦੀ मजे मजे की बात है। मैं हैरान हूँ, उनको समझ ही नहीं आती अपने दुश्मन की। वैसे वो कभी मुंह लगा के ना राजी हों, ऐसे मौके पे वो अंकल हुसैनी को फोन करके भी स्पेशली कि फलाने ने चुक लो, फलाने ने चुक लो, उसको बात करने का मौका दो। अब पता नहीं चल रहा कि वो आपको एंजॉय करना चाह रहा है आप लोगों के लिए। वैसे वो धमकियां लगाता फिरे कि पाकिस्तान बढ़ो तुसी आके दसो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अभी बड़ा प्यार ये आ रहा है कि हुसैनी साहब इन्हें ले लो, फलाने ले लो, फलाने ले लो। वजह क्या है, वो एंजॉय करेगा। और आप ऐसे मतलब हो कि आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि यार ये जगह ये ऐसी नहीं है आपकी ये काम करने वाली। किधर गए सारे यार? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਡਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣਿਆ ਹੈ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा वो ऐसे अजीब मखलूक है, वो याद है भट्ट साहब अभी चले गए थे अल्लाह यारी साहब के पास, और उसमें भाई ने दलाइल कतिया से उसका मुंह बंद करने की कोशिश की अल्लाह यारी की, और उनको लगता भी है कि वो कर रहे हैं बंद, मगर ये गैर अहमदी ऐसे हैं वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह यारी ने इन सब को रगड़ा है। अल्लाह यारी कह रहा है कि भाई आप लोग उमरिया दीन का ऑफशूट हो, दीने वो भी उमरी सही था, आप भी सही हो। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨੇ ਉਮਰੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ वही तो वो उसने इन सबको गैर अहमदी सारों को छितर मारे हैं, पर वो एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे कोई पता नहीं किस तरह की जहानत इन्होंने पाली हुई है। अच्छा वैसे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह उमदान भाई, अगर वो कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब की तालीम, तो ये जो वो शाह डड्डू और वो मलक और दूसरा मलक वो किसकी करते हैं? हाँ सही बात है, ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत आला। वो भी नबी पाक ही करते होंगे और क्या है। हाथ रखो। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ सैफी ਆ को मैंने कहा, हज़रत सैफी को मैंने कहा कि अहमदी अखलाक दिखाएं, तो वो साथ ही आ गया कि ये इंडिविजुअल इनफरादी है, इसका कुछ नहीं है। तो इसी तरह वो डड्डू लोग भी कह देंगे भी ये इनफरादी है, रसूलुल्लाह का नहीं है। तो कहने का मकसद कि ऐसे अपने अपने मुसलमान जो हैं जो जिन्होंने नेकी की बातें सिखाई हैं, आहो उन्होंने नहीं बनना तो इनफरादी में ही कहता बस है ना। पर दूसरों की बारी आएगी तो पूरा मुसलमान थानू की हो गया मुसलमानों प्लान टपका, फिर इनफरादियत ख़त्म हो जाती है। तो मज़हब ये अजीब ही किस्म के होते हैं। अजीब ही मजहब ने एक अजीब ही दिमाग मजहब जो है इसने बेसिकली इंसानियत को डिवाइड किया है। एग्जैक्टली। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਹੋਣ ਰਹੀਆਂ मजहब ने इंसान को डिवाइड किया है, लेकिन मजहबी जो हैं क्या कहते हैं उससे कहना चाहिए उसको, वो लफ्ज़ मेरे मुंह में नहीं आ रहा,
जो यार मजहब हाँ अली जो अकबर मजहब हाँ जी ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਹੈ ਨਾ हाँ ਉਹ जी 6 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਹਫਜ਼ हाँ ਤੇ जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਚਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਸੀ हाँ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ चलो लबनान दे विच ਜੇ ਰਾਣਾ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਬਲੀਵਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਉਹ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਕੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਐਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਵਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਮੁਲਹਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ मसला ये भी प्यारे भाईओ कि मजहब जेड़ा है उन्हें मनो तुसी क्यों नहीं मनते पैर सड़ते ने कहन लगे कि मजहब ने डिवाइड किया तरीका मजहब दी खोल के देख लो ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕਾਰਡ ਖੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ मैं वही कह रहा तुसी तरीक खोलो इंसानियत दी जिन्नी को साढ़े को नफीस दे मजहब ज्यादा सिर लथे ने जिथे मजहब नहीं उन्हें तुसी वेखो ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਕਤ ਆਈ ਉਹਨੇ ਤਕਾ ਕੇ ਵਜਾਈ ਹੈ हाँ जी ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਡਰਦੇ ਸਨ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰੇ योदी मारे सी ना उन्हें ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਰ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਆਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਂਗਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਮਾਜੀਆਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਤਾ ਫੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰੋ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਰੇ तो यार फिर ज्यादा दो तो नहीं छट्टा लग गया कितना चाह देंगे वो सारे म्यूट ਉਹ ला ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਦਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਬਰਾੜ ਦਾ ਔਰ ਬੋਰੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ सब वैसे ही हर टाइम बोर होंगे होते ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਛੇੜਦਾ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕੀ ਮਸਲਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਿਆ दूर करो बंदेशा भाई की बोरियत दूर करो ਆਹੋ ਗਾਣਾ ਲਾਓ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨੂਰ ਜਾਨ ਦਾ ਹਾਂ ले गाना लाओ कहते हैं कि मज़हब जो है अमन का होता है ना सारे मज़हबी मगर पूरी बात नहीं करते सिर्फ हम ख्याल लोगों के लिए पता है हम ख्याल नहीं हो तो ताड़ी ऐसे ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਇੱਕੋ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ या कहते तो ऐसे ही हैं
अब ये पता नहीं, ये बिंग नाम का जो बंदा है, ये भी जब भी मुझे देखते हैं तो इनकी भी ख़्वाहिश होती है ज़ुबान पे, बहुत मोहब्बत का इजहार करते हैं फिर मेरे साथ। हैं पता नहीं कौन, जानते नहीं है मुझे, ना मैं इनको जानता हूँ, पर शफ़क़त की ज़ुबान इनकी बहुत होती असल है। में ना आपने अपने इल्म और फहम के साथ ना एक परसेप्शन बना दी हुई है सोशल मीडिया पे, वो क्या? इसलिए लोग आपसे बहुत मोहब्बत करने लगे हैं। बहुत आला। वो क्या बनाई है मैंने परसेप्शन? हाँ, तेनू तो ना मैनू पुछ जे तेनू ना पता होए। नहीं पता, मैं नहीं हूँ हाँ उधर भी। नहीं मैं पता, लुमा तू को कह रहा बहुत था कि मैं मासूम है, इतना ज़हीन तू नहीं हूँ। सारी टिकटाक नू ना धोखा दे सकदा, मनो नहीं दे सकदा। बस सही है यार। नहीं यार, वैसे सीरियसली तकलीफ होती है। क्यों होती है आपको तकलीफ? मतलब इतने इतने बगैरत चेहरे। तो आप उनको क्यों देखते हैं, क्यों उनकी तरह उनको बॉदर करते हैं? आप अपनी लाइफ देखें, अपन उसको वो बेटर तू करने की मिसाल कोशिश बचपन करें च सुनी जितना दी कर सी, सकते हैं। चोर मचाए शोर, ਉਹਦੀ समझ नहीं सी आंदी। ਉਹ टिकटाक ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਚ बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੱਕ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। मलेशिया भाई, मुझे एक बात बताओ, क्या कोई बच्चा, उसका एडमिशन करा दिया जाए ये अस्पताल में रायवंड के किसी मदरसे में, तो वो मुरब्बी बनेगा या मौलवी बनेगा? और अगर कोई गैर अहमदी बच्चा अपने जामिया में दाखिल करा दिया जाए तो क्या वो मौलवी बन सकता है कि मुरब्बी बनेगा? ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੜ ਜਾਣੀ ਆ, ਰਹਿਣੀ ਦੇ। नहीं, सच बोलना चाहिए हमेशा, और ਕਿਉਂ सच का ਆਜ਼ਾਦ दामन ਭਾਈ? नहीं छोड़ना चाहिए। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। सच बोलने ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਇੱਕ 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 ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ बहुत ਇੱਕ आला। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਲ ਦਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨਾ ਚੌਧਰੀ, हम्म। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। नहीं, पर ये क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन ये है कि गैर अहमदी बच्चा अगर बड़ा जामिया दे में देता है एडमिशन फोन कराया अपने जाए। ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦਾ। अच्छा, हाँ, सही है। मुरब्बी, मैं अपनी बात बता देता हूँ, मुरब्बी और मौलवी की डेफिनेशन बड़ी आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैंने बड़ा ज़्यादा गौर नहीं करना पड़ा समझने के लिए बात को। वो ऐसे है कि चंद हम ख्याल लोग, अगर मदरसे की बात करें, चंद हम ख्याल लोग एक बच्चे को बचपन से हम ख्याल बातें सिखाते हैं, और फिर कुछ सालों बाद उस हम ख्याल बच्चे से एग्ज़ाम लेते हैं, पूछते हैं, तो अगर तो जवाब एग्जैक्टली हम ख्याल लोगों जैसे हों तो सर जी मौलवी तैयार। अगर वो हम ख्याल लोगों के अकॉर्डिंगली जवाब ना दे, उसके ऑपोजिट दे दे, तो वो मौलवी की डिग्री कभी हासिल नहीं कर सकता। एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन मुरब्बी की भी है। हम ख्याल लोग इकट्ठे होते हैं, हम ख्याल बातें, हम ख्याल अकायद उसको सिखाते हैं, फिर एग्ज़ाम लेते हैं, और एग्ज़ाम में अगर हम ख्याल बातें ही आती हैं तो हैंस लो जी मुरब्बी तैयार। क्या ख्याल है, ये डेफिनेशन में गलती तो नहीं कोई? ये जो रशिया में जलजला आया था ना, जी तो जी जी आरफन बच्चों को उन्होंने, आपकी फौज ने, पाकिस्तान की ने तालिबान बना के तैयार कर दिया था। अब कसूर बहुत आला। फौज का है या उन बच्चों का है, ये बताओ आप। ऑर्फन बच्चों को उन्होंने पकड़ा, रशिया का कह रहे हैं? जलजला आए थे तो ओके, आरफन बच्चे जो थे ना, उनको कोई वाली वारिस नहीं ठीक थे। है। हाँ 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 हाँ। अब ISI ने उन बच्चों की ब्राटअप की, उनको सेंस में रखा, बाद में उनको बड़ा तालिबान ज़बरदस्त का नाम क्वेश्चन दे है यार, दिया। अब बड़ा कसूर ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कसूर किसका है, उन बच्चों का है या आपकी फौज का है, ये सवाल है। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है यार, कोई और इसके बारे में कलाम करे। अली भाई, आप क्या कहते हैं, किसका कसूर है? अली भाई को भी फुल बोरियत हो रही है, जब वो तक कह रहे हैं कि उनको वो चलने नहीं दे रहा काम मोहम्मद अहमद।
कुरान के मुताबिक उनको इस तरह ले जाने वाले उसके ज़िम्मेदार हैं। बहुत आला जी कह रहे हैं कि जी कुरान मजीद के मुताबिक जो है हमारी जो वो फ़ौज है वो दिया नीचे से आ गया। जब तक वो इनके लिए मनी गन के तौर पे लड़ते रहे अफगानिस्तान में, वो गुड मुजाहिदीन थे। या जब वो टास्क पूरा हो गया तो वो टेररिस्ट कहला दिए गए। सेम लोग। जैसे जहन्नमी कहते हैं कि उनको दुगना अजाब दे क्योंकि उन्होंने हमें गुमराह किया। बहुत आला। पर अतीशा भाई तब तक तो बहुत लेट हो जाता है ना। और मेरा नहीं ख्याल, अगर आपने आप ही की बात के मुताबिक कुरान मजीद के मुताबिक ये उनको लेके जाने वालों उनका कसूर है, तो आई डोंट थिंक सो कि जो आपने अगली आयत का रेफरेंस दिया है वो वाले लोग वो ये बात कर सकें कि भाई फ़लाने को दुगना अजाब दे, क्योंकि उनका तो फॉल्ट ही नहीं था, उनको तो मिलना ही नहीं चाहिए। आपकी बात के अकॉर्डिंगली जो आपने ऊपर वाली आयत को शेयर किया है, वो तो स्ट्रेट वे जब अल्लाह ताला के पास पहुँचे, अल्लाह ताला को तो पता है ना सारी बातों का, तो अल्लाह ताला कह रहा है नहीं तुम लोगों का कसूर नहीं है, उनको आ लेने दो जरा, जिन्होंने तुम्हारे ऐसा बनाया है उनको फंडूंगा मैं। तो दूसरी आयत पहली वाली आयत से भाई मिल नहीं रही, कंट्राडिक्शन है, थोड़ी करें इसको ठीक, तवील करें अच्छी सी। अच्छा वैसे ये जो जन्नत दोज़ख का मेरे जो ज़हन में ना वो कि हर एक का जितना जुर्म होगा वो उसकी सज़ा यार पाएगा और जन्नत में। जट भाई बहुत अलग गल है, अगे जट तो भी पता आपको नहीं अपना किसी ने ज़हन वेखी है कि इस्तेमाल नहीं। नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल आपको इजाज़त नहीं है। आप जो खुतबात में बताया गया है वही सुनना चाहिए और वही करना चाहिए कि वही ठीक है, आप नहीं इस्तेमाल कर सकते दिमाग को, पता है जट भाई। ਉਹ ਅਗਲੀ ਜੰਨਤ ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। वाह भाई वाह। ਕਿਉਂ ਜੱਟ? कौन सा शामिल हुआ हमारे साथ? हकीकी इस्लाम है अभी जिंदा। ਹੈਲੋ यार ये सही चीज़ लेता है हमारा। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ। अली भाई कितने बिजी हो गए हो यार, फिर मैं बोर हो जाती ब्रॉड बंदे चले जाते यार, आओ ना तो आगे आओ। सर मैं असल में उनको पहले आपको बताया था मैं काम पे आया हुआ हूँ। अच्छा सही है। राहिल भाई आ गए हमारे साथ, खुद तशरीफ़ ला चुके हैं। और राहिल भाई का एक ही नारा है, खिलाफत अहमदिया जिंदाबाद और हकीकी इस्लाम अहमदिया जिंदाबाद। माशाल्लाह से। जी राहिल भाई क्या हैं आपके अफकार, आज करें हमें बयान शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बस मैं यही सलाम दुआ करने आया था आपके पास, आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ। जी राहिल भाई, फिर आपको उस दिन बाइबल पढ़ने का मज़ा आया तो आपने मज़ीद पढ़ी आगे हदायत चैप्टर? टाइम ही नहीं मिला मुझे बिल्कुल भी, फैमिली में इतना बिजी था, गेस्ट आए हुए थे इतने, तो अब थोड़ा फ्री हुआ हूँ तो मैं ऑनलाइन आया हूँ। बहुत नहीं, ये ऐसे है थकावट और मसरूफियत की दो ही आर्ज़ इंसान को लगे हुए हैं, वो जब आ जाए तो मुश्किल हो जाता है कुछ करना। बात ठीक है आपकी। और राहिल भाई आपने ईद की खुशियाँ अच्छे तरीके से मनाई। अपनी ईद की खुशियों में जो लोग ईद की खुशियाँ नहीं मना सकते उनको आपने शामिल किया। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन आमीन।
हम्म। आप तो बताते नहीं हो आप कहाँ पे हो, तो अली भाई को कैसे पता चलेगा कि वो आपसे मिलने कहाँ आए? हाँ ऐसे करते हैं लोग, सही बात है। और मिला अभी तक आपको खुदा? कभी कोशिश की अल्लाह को ढूंढने की, खुदा को ढूंढने की? नहीं नहीं, ये तो जमात है। मैं खुदा की बात कर रहा हूँ। मैं खुदा की बात कर रहा हूँ, जमात नहीं है। सारे जमाती बैठे हैं, इनसे पूछो इनको खुदा मिलता है कहीं पे? मेरा नहीं ख्याल मिलता है। खुदा बताएं नहीं आप, नहीं, कब आगे मुलाकात हुई इससे? इलाही जमात से कांटेक्ट हो गया तो फिर खुदा से भी मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत आला, बहुत आला। क्योंकि क्योंकि हमारा खुदा तो जिंदा खुदा है ना। हमारा खुदा तो जिंदा खुदा बात है जो पता बोलता क्या है। है, वो खुदा नहीं बात है जो पता क्या 1400 है, साल पहले खामोश हो गया। बात यह है हम्म। कि जिसको खुदा की तलाश होती है ना, वो किसी जमात का पाबंद नहीं होता, वो अपने दिल में सुभान जानता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, हमारा खुदा जो है वो जिंदा बोलता खुदा है। बाकी दूसरे लोगों का जो खुदा है वो तो 1400 साल पहले खामोश हो गया है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। खुदा कहाँ पे है, मुझे ये तो दिखाओ, लोकेशन दिखाओ। पूरी कायनात में किस जगह पे है? अगर ये सवाल कोई गैर अहमदी आपसे कर दे तो आप क्या जवाब दोगे? वो अपना चौधरी साहब, दो चीज़ें ऐसी हैं, एक दवा और एक दवाई। वो यकीन ना हो तो दोनों ही असर नहीं करती। दुआ इल्ला और जिगर। दवा दोनों पे यकीन हाँ ना जी, हो तो दोनों काम नहीं करते। दोनों काम सुभान नहीं अल्लाह। करती। सवाल ये है कि मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। बहरहाल वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अब मैं आपको दिखा दूंगा, आप अगर यकीन ना करेंगे तो आपको नज़र ही नहीं आना। हर इंसान जो सच्चे दिल से रब को याद करता है ना, रब उसके पास ही होता है। जट भाई, आपकी इस बात से सीधी मेरे सी दिल में बात है। क्वेश्चन आया बाकी है। ਲੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਜਟ ਭਾਈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਯਾਰ ਹਮਰ ਰਾਹਿਮੀਨ 3 ਦਫਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਇਸਤਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰੋ। नहीं ਕਿਸੇ वो ਜੋ ठीक है, लेकिन ਕਿਸੇ ਨੇ नहीं ਉਹਨੂੰ, अपना ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੰਦਰ 'ਚ, अगर ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਲੀਸਾ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ अ, ਕਹਾ ਇਹਨੇ नहीं ਬਰਾਬਰ ਜਗ੍ਹਾ नहीं ਮੌਜੂਦ नहीं ਹੈ। नहीं 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 ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ ਨਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਡਾਕੇ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਾਲਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। बहुत आला, बहुत आला। ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਾਤਲ ਨਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰਾ। तौबा, तौबा, क्यों नहीं हो भाई सकता? अल्लाह जिसको चाहे मर्जी बनाए। इंसान है, इंसान को नहीं कुछ नहीं भी हो नहीं सकता नहीं 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 नहीं, नबी तो गुनाह तो मासूम ਹੁੰਦਾ, ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਪਾਕ। किधर कहाँ लिखा है ये? है क्या। नबी दी डेफिनेशन की है। और किधर लिखी है ये डेफिनेशन? मुझे बताओ, कुरान में नबी की डेफिनेशन कहाँ है? एक मिनट में काट लेगा। कड़े निकालें। वो मेहनत करने लगे और उसकी प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज लिखी हैं, डेफिनेशन कहीं नहीं लिखी हुई। मेहनत ना करना, मेरे से पूछ लो, मैं कर बैठा हूँ। हाँ, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मेरे रुतबे से ज़्यादा ना बढ़ाना। मैं हदीस मेरी ना बता- डॉक्टर लोकाल सी जैसे कि क्रिश्चियन अपना पता की ये अपना जट भाई मनो या ना मनो ਲਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਉਹ ਕੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਵਦੂਨੀ ਅਸਤਜਿਬ ਲਕੁਮ, ਹੈ ਨਾ। हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਜਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਫੱਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। हाँ,
RQ भाई आ गए हैं, खुद तशरीफ ला चुके हैं और सारे मामला ठीक हो जाने हैं अभी। मैंने सलाम किया आप लोगों ने, तो अच्छा आपने सॉरी मुझे यार, नहीं सुनाई मुझे दिया, सरकारी सॉरी। मुसलमान वालेकुम समझ के अस्सलाम। ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੰਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਨਾ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁल्लाहि वबरकातुहू। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਬਾਬਾ। अब पूरी आई है आवाज़, पहले ऑनेस्टली नहीं आई थी। या मेरा ख्याल जब आपने वो एक्सेप्ट का बटन प्रेस किया है तो ऊपर आने से पहले पहले आपने बोला जो हम तक नहीं पहुंच पाया, ये हुआ है। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ, जी ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ओके ओके ओके, नहीं सॉरी, फिर नहीं सुनाई दिया, माजरत। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ मून मौलाना भाई को भी लेते हैं, मून भाई भी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे हमें। मून भाई ने मुझे लगता है रिजेक्ट कर दिया। हाँ, रिजेक्ट कर दिया। मून भाई मैं आ अपने जाओ, मौ- अच्छी अच्छी ਮੈਂ बातें ਆਪਣੇ बताएं। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੌਲਾਨਾ माशाल्लाह। ਮੁਫਤੀ ਵਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਜਾ ਕੇ। बहुत माफी ना दे दो, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਉਹਨਾਂ आपने ਕੋਲੋਂ ऐसा कुछ नहीं किया मून ਗੱਲ भाई, ਇੰਜ ਏ, माफी क्यों मांग रहे हो? ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਤੇ ਸਮਝੋ। ये हमें कह रहे हैं मुजीबुर रहमान, और ये ਤੇ वो ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। RQ भाई, वो अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता ना कि तुम नजर दौड़ाओ थकी वापस आएगी, फिर दौड़ाओ फिर थकी वापस आएगी। तो देख, अगर वो रियल वाले मुजीबुर रहमान और ये वो वहां से भी नजरें थकी वापस आ गई हैं, तो यहाँ से भी थकी वापस जानी है। तो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ। अच्छा, नहीं मेहनत से नहीं थकना आपने, मेहनत करते जा रहना है जब तक अल्लाह ताला ने ये सांसें दी हैं, हिम्मत दी है, ताकत दी है। मेहनत से बिल्कुल नहीं कतराना, और ये सहारे ढूंढना कि अल्लाह किसी ना गल करेगा तो मैं उसकी सुन के तो मनना नहीं। अपनी मेहनत जारी रखें। ਦੇਖੋ ਜੀ, और ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਬੈਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ओके, ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗਾ। आपने मुझे, मैं फॉलो बैक करूँ? ओके ओके, मैं करता हूँ, ये ले, ਇਹ ठीक ਆਪਣੇ है। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਬੈਕ ਜੀ ਕਰਨਾ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਐਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿ ਅਰਲੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ जी ਕੇ ਨਾ ਕੀ क्या ਕਰਾਂਗਾ। लेके? अर्ली अब मैं पहले रिटायरमेंट पहले पहले तो मेरी एक बात सुनो। ये पता है वो गैर अहमदियों की ब्रॉडवे पे बैठ के वो ये नाम लेके वो कर रहे हैं, मोहम्मद अहमद लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? इतना खूबसूरत नाम है, बहुत प्यारा नाम है। तो फिर यही बोला करो। अच्छा, वो मैं अपने सोच रहा चौधरी था कई आते हैं, अपने अहमदी भी वो चढ़ाने, एदा है नाम है, ए बोलो, ए लवो। वो अच्छा ये हरकतें कर रहे होते हैं। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, जी ਜੇ ਤੁਸੀਂ जी, ਜਾਓ ਨਾ ਲਾਲਾ ਰੁਖ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਗਏ, किसकी ਉੱਥੇ ब्रॉड से? ਆਪਣਾ मैं तो ਲਾਲਾ जाना, मैं तो जाना हूँ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਜੇ किसकी ਗੱਲ ब्रॉड ਕਰਾਂ, पे? ਲਾਲਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं, मैं किसी गैर अहमदी की ब्रॉड पे नहीं जाता। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਆ ਹੈ। हाँ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक, अच्छा सही है। मोहम्मद अहमद, मैं सोच रहा था कि अर्ली रिटायरमेंट लैके ना ਹਾਂਜੀ। तो जी पाकिस्तान डेरा लावां। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ यार ਸਮਝ सच ਆ बताऊं, ਗਈ ਏ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਏ। ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੀਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। बहुत ਹਾਂ ਆਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਂ। ਤੇ बहुत ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਟਿਕਟਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੌਰੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਕਦੇ ਪੀਰ। ਰੁਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਓ ਦੋ ਤਿੰਨ ਭਾਈ, ਮਿੰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਰਾਤੀ ਪੀਰ ਹਸਕਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਾਲੇ ਤੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਅਲਫ ਬੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਾ ਤਲਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਤਕਿ ਅੱਲਾਹ ਯਜਅਲਹੁ ਮਖਰਜਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਫਜੁਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ।
ਉਹਨੇ ਮਈਆਂ ਰਫਚੇ ਰੁਕਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ठीक है किते और काम ते टॉपिक ते कर रहे हैं पीर साहब भागना नहीं है आज आपने। मैं कहा जी आप पीर हैं आपका कौन से सिलसिले से तलक है रिलेशन होता है ना ये सिलसिले में। वो जनाब हथे से उखड़ गए वो गालियां देना शुरू हो गए। मैं कहा जी अच्छा दूसरी बात मैं कहा आप पीर बने हुए हैं मुझे तो पता है कि आप चरस बेचते होते थे स्मगलर से। वो बस जी तुम ये तुम वो तुम ये तुम वो मैं कहा प्याज है ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੱਟ ਭਾਈ ਪੀਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਇਲਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਪੀਰ ਬਣੋਗੇ। नहीं वैसे बात सही है बड़ी कि पीर बनने के लिए इल्म की क्या जरूरत है। हाँ जिसके पास इल्म ही आ गया वो पीर बनेगा। ना कोई काम ना कोई कार याशी पैसा तो असर चारे शामा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਬਣ ਜਾਓ। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ਬਸ ਮਣ ਕੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਕਲੀ ਵਾਲ ਲਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਣਾ ਕਾਲੇ ਸੂਟ ਦੋ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ वो जो आपके पास पुरानी तलवारें पड़ी हुई हैं उस पे लिख देना फलाने साहबी दी फलाने साहबी दी। नहीं वो तो मैं ऑप्शन से भेज देनी है। नहीं भेजनी भी उस पे लिखे ये फलाने साहबी की है फलाने साहबी की है। वो बड़ा अच्छा है एक वो स्टार्ट मेरे को तो ढेर ने ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ जगह खैबर दियां तलवारां लग गई सानू। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਣਾ ਪੀਰ ਕੈਂਡਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਪੀਰ ਕੈਂਡਾ। ਬੰਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ पीर गेंडा क्यों कहना है। ਕੈਂਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੈਂਡਾ कनाडा कनाडा वही मैं कहूँ बे भाई इतनी अच्छी पर्सनालिटी गेंडा बनाता ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਬਾਜ਼ ਆਈ ਹੋ। ਆਰ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਰ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ। ਆਪਣੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਪੀਰੀ ਹੈ। लो भाई काइंडा ले लो यार। ਮੈਨੂੰ ਆਜੂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੈਸੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ ਮੈਨੂੰ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काइंडा भाई क्या हाल है आपके। ठीक ठाक तुम सुनाओ। बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है काइंडा भाई की कर देता ये कल अलामा साहब आपकी कोई ऑडियो कोई रेफरेंस दे रहे थे आपके कुछ नया किया है। अलामा साहब कौन से अलामा। अलामा एक ही है टिकटॉक पे जमात अहमदिया का सबसे बड़ा दुश्मन जिसके आगे मजीद पैरोकार दिन रात फिरते रहते हैं। मैंने नया कुछ नहीं किया पुराना ही होगा भाई नया करने से कहाँ से हुआ है? वो आपने कोई रवा के बारे में कर दिया तो वो फिर अच्छा वो यार मैंने नया कुछ नहीं किया वो पुराना ही है। ओके वो पुराना ही गंदे रहेंगे उनकी करना मैं गाने दी कोई नहीं ऐसे ही है। जान दे वो कहीं को कह रहा था कि आपने कहीं ये कह दिया कि वहाँ पे ना तो जो कवारी हैं बच्चियाँ ना वो सिक्योर हैं ना नॉन जो कवारियाँ यानी कि मैरिड है वो भी सेफ नहीं है वहाँ पे। ऐसी कोई है बात है आपने कही थी। यार जाने दो बहुत पुरानी बात है। अच्छा पुरानी बात है। मतलब वहाँ पे आपको कोई भी अच्छी फैमिली नहीं नजर आई। मसाइल हो ही जाते हैं पर अच्छी फैमिलियाँ भी तो होंगी यार। आपने ओवरऑल ये सारे शहर को ऐसा कर दिया था। मैंने ये नहीं कहा था। सोशल मीडिया पे बड़ी नाजुक बातें हैं यार। मोहम्मद अहमद भाई मैंने जो बात की ना वो पूरी उसने चलाई नहीं उसने थोड़ी जुमले में चलाई है। मैंने वहाँ के लड़कों के ऊपर तंकीद करते हुए कहा था कि काम नहीं करते ये लोग काम नहीं करते।
24 घंटे पूंडी करते हैं हाँ, या इस तरह की हरकतें, मैंने इस तरह की बात की थी। इनसे यंग जनरेशन जो है वहाँ पे। इनसे बड़ी लड़ाई हुई थी इस बात पे। बात सुनो, काम उनको मिलता कोई नहीं, भूडी भी ना करें, आप उनका ये हक भी छीन रहे हो उनसे। वो उस जुमरे में मैंने बात की, काइंड भाई, ये वाली जो चीज़ है ना, ये मजहबों की और फिरकों की जो लड़ाइयाँ हैं ना, हाँ। उसमें इतनी मतलब सादा सीधी बात नहीं करनी चाहिए, फिर वो लोग इस्तेमाल करके लोगों को तंग करते हैं। और अलामा साहब इस्तेमाल कल से करें बुला उन्होंने, के वो इन लोगों को तंग कर वो रहे हैं। तो बात अब पुरानी हो गई है, वो बात खत्म हो गई है। और वो बात भी इस जुमरे में है कि वाकई यार देखो, लड़कों को थोड़ा काम मिलना चाहिए, नौकरियां नहीं है वहाँ पे, तो फारिग लोग हैं, फारिग होते हैं, तो बात इस जुमरे में थी सारी। तो हर वक्त जो है वो बस इस मामले में मैंने बात की। बहरहाल देख लो, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। थोड़ा एहतियात करा करो यार। वो तो बहुत पुरानी अब बात, उसकी मैंने माजरत मुजरत हर चीज फिनिश हो गई, मामला वो तो चलता रहा। तो अच्छा ठीक, अब अपने यानी कि भाई राजी हो आपको गए एक अपने। बात बताऊं, साल एक डेढ़ सेकंड जट हाँ, जट हाँ, भाई, काइंड हार्ट को बात बताने, काइंड हार्ट भाई आपको एक बात बताऊं, कभी जिंदगी में माजरत नहीं करनी। आपने एक दफा कर ली तो फिर करते ही चले जाओगे। भैया देखो, रजी भाई अपने बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है, ठीक है ना, शख्स हाँ है, जी। बड़े रिस्पेक्टेड है, ही नोज ऑल द आंसर्स, बड़े बड़े वन ऑफ द पर्संस आई रियली रियली लाइक्ड, एडमायर्ड। हम्म। तो उनके पास सवालों के जवाब भी हैं, चीज़ें भी हैं, और जिस तरीके से वो लेके चलते हैं, तो अब बंदा कभी भी उनको जो गलती हुई वो मान लेना चाहिए, माजरत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, स्पेशली जब ऐसा शख्स आपके बीच मौजूद हो जो एक सरपरस्त की हैसियत रखता हो, जिस तरह रजी भाई है। तो उससे पहले तो आई थिंक टिकटॉक में थोड़ा सा मामला गड़बड़ी चल रहा था हर जगह, क्या हर जगह ही गलत है। मैं निकलता हूँ काइंड हार्ट भाई, हमारे लिए तो हमारे सरपरस्त जो है ना खलीफा वक्त है, हम बाकी किसी को सरपरस्त मानते ही नहीं है। नहीं, मैं टिकटॉक के ऊपर बात कर रहा हूँ, टिकटॉक के ऊपर तो नहीं है ना खलीफा वक्त। वो बंदिशे भाई वो कह रहे हैं कि जो मुखालफिन के जवाब देने के मामले में रजी भाई एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, वो उस तनाजुर में बात कर रहे हैं। कोई इस तरह ओवरऑल रहनुमा तो नहीं है ना, काइंड हार्टेड भाई के हैं। इनका मतलब ये है कि वो सख्त से सख्त सवाल का जवाब भी नरमी से देते हैं, बड़ी नरमी से देते हैं। बड़ी नरमी से देते हैं, बड़े तरीके से देते हैं। अब यार फिर आप उनको ये कहें, फिर उनके लिए अब लफ्ज़ है कि वो इल्म वाले हैं, उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, बड़े पोलाइट हैं, लेकिन सरपरस्त ना कहें। सरपरस्त का मतलब कुछ मेरे दोस्त हो रहा होता है। ठीक है, वो यार मेरी वर्डिंग को वो भी गलत चुन लेने ने, समझ लो ना मैं की कहना चाह रहा हूं, आप ही समझ लिया करो। हाँ, मैं तो समझ गया था और मैंने आपकी तर्जुमानी भी की है। नसरुल्लाह भाई वो काइंड हार्टेड है, मिर्जा गालिब नहीं। जबरदस्त। अपनी जगह पे मैं बहरहाल मैं तो यार सच्ची बात है, अगर जो मुखालिफिन है ना उनके बीच भी जाके मैं यही कहता हूँ, बल्कि मैं इनवाइट करता हूँ जाके कि रजी भाई से आपके जो सवाल है उनसे करें, आराम नाल करें। हाँ, बहुत अच्छा, जबरदस्त। और यही बेहतरीन तरीका है, जब आपके पास बंदा मौजूद हो ना तो ज़्यादा बेहतर है उस तरफ रेफर कर दिया जाए। हाँ जी, फिल्म वाले के पास जाके करें सवाल, ये बात सही है आपकी। बल्कि मैं तो इनवाइट करता हूँ कि आए आप भी बात करें, लेकिन तरीके से करें, और जो मर्जी बात करनी है करें, वो देंगे जवाब। हाँ, भैया जबरदस्त। हाँ, ये भी काइंड हार्ट भाई, मैं मजाक, मेरी आपके साथ ना पहले कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जान पहचान नहीं है, लेकिन आपको बताता हूँ, ये जिस टाइप की आप बातें कर रहे हैं ना प्यारे भाई, ये बुत होते हैं, हमने अपने ज़हनों में बनाए होते हैं, फलां बहुत नेक है, फलां दरमियाना है, फलां बहुत बुरा है, फलां इंतहाई बुरा है, ये नहीं कि ये बुत होते हैं। ਸਭ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰੀ ਨੇ ਨਾ। ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ ਕਰੋ ਨਾ, ਵਰਨਾ ਦੁਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਦਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹਲੋ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। सही, इल्मे कुल कोई भी नहीं है। सही बात। सही, इसलिए क्या कह एक सकते शख्स हैं, होता है ना जो आउट ऑफ जाके अब तक जितने भी लोग देखें जो आपको बकायदा इम्प्रेस करे, वो होता है यार किसी की। मुझे डॉक्टर इसरार बड़ा इम्प्रेस करते थे, गामदी साहब से बड़ा इम्प्रेस हूँ मैं।
क्या मैं यार उनको मान मैं लूं? टिकटॉक के ऊपर बात कर रहा हूँ यार मेरे भाई, वो टिकटॉक पे कहाँ से आ गए गांधी साहब या डॉक्टर सोशल मीडिया पे तो है ना वो भी यार, कितने आ गए सोशल मीडिया पे, कितने मुझे यूट्यूब पे अभी देखो डॉक्टर गांधी अभी क्या निकलता है देख तो। यार अब अब लाइव लाइव थोड़ी खुद से आते हैं वो लोग बंदे उनकी में टीम में बंदे जो में बंदे में उनकी बात किस तरह करूं उनसे, कोई यहाँ पे confusion स्कॉलर हैं दो, सुनो, एक है ये यहाँ मैं जो मानता हूँ ना, जट एक सेकंड मैं निकलने अगर लगा। हम दूसरी तरफ खड़े हो ना, जट भाई रुक जिस जो, तरफ ब्रेक से आप लाया बोल करो, रहे हैं, नवे शूज पवाओ। आप कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। नहीं, टिकटॉक पे बंदे देखे हैं स्कॉलर, एक ये बैठे हुए हैं हमारे साथ मोहम्मद अहमद भाई, अरे क्यों बदनाम करते हैं मुझे? तो दूसरे हैं बहुत अली आला, अकबर बहुत साहब, आला। ठीक है जी, तीसरे हैं राजा ताउल मनान साहब, माशाल्लाह। चौथे हैं बस सैफी ठीक साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पांचवें हैं ताहिर साहब अठवाल साहब, कौन से? हाँ जी यार ताहिर अठवाल साहब। इनको खास दुश्मनी लगती है रजी भाई। नहीं नहीं नहीं, किसी से मेरी आदम दुश्मनी सैफी साहब, नहीं है। मैंने नहीं मैंने नहीं, वो समझ आई मेरी वो बेइज्जती मेरे कर जैसा रहे मेरे हैं। आप जैसा बंदा है, वो शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी को वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने पूरा समझ ला कि एटीट्यूड तुम चेंज मेरी हो गया बेइज्जती है। कर रहे कहने का मेरा मतलब है मोहम्मद अहमद भाई, एक टिकटॉक के ऊपर एक पूरी एनवायरनमेंट, एक एटीट्यूड चेंज हो गया है। जी जी। प्रॉपर ये जवाब स्कॉलर दिए जा हैं। रहे हैं, एक प्रॉपर वे में, एक आगे अभी बाकी भी तो सुन लेना यार, फिर हम जवाब दिए जा रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में जवाब दिए जा रहे हैं। जी जी। पांचवें हैं 1122 साहब, सुभान अल्लाह। ठीक है जी। छठे हैं मलक साहब, वो जो मेरे दोस्त हैं। मलिक साहब भी वो मैंने भी बड़े प्राइवेट मैसेज करते, तू आया करता। हाँ जी, सॉरी यार। तो ये वो हैं, ये हैं स्कॉलर्स। आप पता नहीं ऐसे स्कॉलर बनाए बैठे हो। ये स्कॉलर नहीं है, माशाल्लाह बड़े अच्छे रफी साहब हैं, उनका एक बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव है पहलू आए हैं जो। शुक्र करे कि भाई ये चीजें थोड़ी सेटल हो गई ये हैं जिनके आपने नाम लिए ये स्कॉलर नहीं, ये कॉलर हैं। भाई। ऐसा लगता था सीसीडी पुलिस भाई, माइंड ना करना यार, वाकई ऐसा लगता था उससे पहले कि उनमें और हमें कोई फर्क नहीं नजर आ रहा, अब वाजे फर्क नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह भला करे, यही एहसास दिलाना था प्यारे भाई। अरे उसको खुद हुआ है, आपने थोड़ी दिलाया है, उसको खुद हुआ है। अच्छा, मेरी एफर्ट दी वैल्यू कोई नहीं। तो देखो ना।